गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जय, विजय, श्रेया, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। नेहा, लकी बॉय, युवराज, सबको वेरी वेरी चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। उत्कल, मोनिका, ऑफिशियस कर लिया था, पर यूज से एक बार रिवीजन करना था। ऑफिशियस लोग तो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, ओके, अपनी बात हर जगह रखवाते हैं। ये वर्ड याद रखना, डोमिनेटिंग, ओपिनियटेड, डिक्टोरियल, ओवर बियरिंग। ओवर बियरिंग बर्दाश्त नहीं करते हैं, अपनी बातें रखवाते हैं। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सुपरनोवा, रक्षा, मनु, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, कल एग्जाम है ना, तो कल से तो मेंस का, हाँ कल से तो मेंस का शुरू हो गया एग्जाम्स, मतलब हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आशु, आशीर्वाद दे दिया, भर भर के आशीर्वाद दे दिया। आज 11 बजे आशीर्वाद का ही बैच है ना, काफी सारे बच्चों का कल ही से एग्जाम है, काफी सारे बच्चों का कल एग्जाम है अभी। मनु, गुड मॉर्निंग। मंटू, गुड मॉर्निंग, कल है ना, तो कल अच्छे से जाके एग्जाम देना है। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलो रिवीजन कर लिया जाए, भर भर के ब्लेसिंग दे दिया है। 3 बजे घर से निकलना है, निकल जाना है, टाइम से पहुंच जाना है, टाइम से एग्जाम देने पहुंच जाना है। गुड मॉर्निंग लकी बॉय। ये मेरा स्टडी रूम है, यहीं पे बैठ के मैं पढ़ने लिखने का काम करती हूँ। रूम दिख रहा है सबको? हाँ, सारा पढ़ाई का काम मैं यहीं पे करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे इस रूम में पढ़ना। चलो ऑफिशियस हो गया। ग्रामर का न्यू बैच आ रहा है ना, मंडे से आ रहा है। ओहो, सी ही सेज, Bala says कि I'm from, Balapanur says good morning ma'am, I'm from South India. Okay, I don't know Hindi but I can understand a little. Please talk to me once I want some suggestions. Okay, on my preparation. Sure, I'll talk to you. Okay, I'll talk to you, not to worry. But before I start the class ना, एक तो हैप्पी होली है। हैप्पी होली, होली अभी नहीं करेंगे, होली पढ़ने का माहौल में होली होली। लेट मी सी द डाउट्स। See what I have to inform you people from tomorrow. From tomorrow, that is from tomorrow is second ना, tomorrow का स्पेलिंग देख लेना, डबल एम नहीं होता, सिंगल एम होता है, डबल आर होता था एग्जाम में। From tomorrow we'll be having a new batch, and that new batch will be from 9:30 itself, 9:30. Okay, we have already completed the mains batch. Okay, the mains batch we used to have on Tuesdays and Thursdays na. So from tomorrow is Thursday. From tomorrow we'll be having a new batch that will be of spotting errors. ठीक है, spotting errors का batch will be having. Okay, and that will be from 9:30 to 10:30. The students who have completed the syllabus na, they are cordially invited to attend this batches. Okay, this will help you to a great extent in improving your spotting errors and all. And that will be from 1 hour. That will be from 1 hour, for 1 hour. And from 6th of March now we will have a foundation batch. Okay, this is a course on spotting errors. This batch is solely for the students who have completed their syllabus. Okay, this is for the students who have already completed their syllabus, and the students who want to do the basics of English, they can join the foundation batch commencing from, join the foundation batch commencing from 6th of March, and the timing will be 12:30 to 2 o'clock. This is the first time in the history of Unacademy that I am taking a class from 12:30 to 2 p.m. Generally my foundation batches used to run from 3:30 to 5, but first time I'm scheduling a class from 12:30 to 2, and this will be from Monday to Friday. This will be from 6th of March. 6th of March, most probably it's 6th of March is Monday na, Monday. Okay. मेंस वाले जल्दी जाओ, सीट खाली करो। हाँ, history 12:30 to 2 p.m. This batch will run from Monday to Friday. Okay, I want to keep you people free for the entire second half. Second half mein you get free na, so you will have immense time for self study. So now you have to make a certain routine for your life. First study is devoted to the classes, be it the classes whether it's practice or foundation, anything, GS, maths and all. And what you have to do na, second half you have to devote it to the devoted to self study and see the miracle of self study. See the miracle. self study का ना क्या करिश्मा होता है, miracle. एक बार आप self study करके देखो. Second आप अपने आप को ना, you devoted for self studies.
फर्स्ट हाफ में जितना क्लासेस एंड ऑल कर लीजिए। vocab का practice batch as soon as I complete Samundra Manthan batch na, most probably I'll be completing Samundra Manthan batch by the end of March, and from April we will have, from April in place of Samundra Manthan batch we will have a practice batch of vocab plus close test. ठीक है, फिलिप्स का भी I'll bring a batch. तो हो गया, पीछे चलो रिवीजन कर लेते हैं, फिर नए वर्ड्स पे जाएंगे। अरे वो सब हटा देना है, गलत वो सब ना पहले से शेड्यूल है। आपको ना 8 मार्च को बैच दिखा रहा है, होली के दिन भी बैच दिखा रहा होगा, इग्नोर करना, वो सबको मैं शेड्यूल कर दूंगी। होली के दिन कौन पढ़ेगा, होली के दिन बैच दिखा दे रहा है, होली के दिन भी बैच नहीं है, कोई बैच नहीं है। 7th को बैच है, होली के दिन नो बैच, और इनफैक्ट 8th के 9 o'clock वाला जो बैच है ना वो भी नहीं है। होली के जो दूसरे दिन सुबह वाला बैच, होली के दिन मैं दोपहर वाला ले लूंगी, 12:30 बजे वाला ले लूंगी, बट होली के दिन सुबह वाला पढ़ा दीजिएगा। आ जाना, आ जाओगे तो पढ़ा ही दूंगी। राजस्थान में 6 और 7 को होली है। अच्छा, और क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंजेस होने वाला है ना। यूट्यूब का, मेरा यूट्यूब का टाइमिंग भी 11 बजे होगा। पहले 11:30 बजे पढ़ाती थी ना, 11 बजे करूंगी, तब तो 11:15 बजे तक, मतलब 12:15 तक खत्म करके फिर 12:30 से क्लास शुरू होगा। चलो स्टार्ट किया जाए। 7 और 8 को होली है, तो 7 को तो होली का दहन है ना, रात में होता है होली। पर यूज, चलो पर यूज रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, रिविजन कर लेते हैं। पर यूज करने से पहले थोड़ा सा देख, जांच पड़ताल कर लेना। पर यूज करना, पर यूज वर्ड हो या परयूजल वर्ड हो, परयूजल वर्ड है, इसका मतलब ये होता है जांच पड़ताल करना, एग्जामिन करना। यूज करने से पहले ना जांच पड़ताल कर लेना, एग्जामिन कर लेना। इंस्पेक्टर भी तो जांच पड़ताल करते हैं, स्टडी कर लेना। स्क्रूटिनाइज का मतलब भी है छानबीन, जांच पड़ताल। लुक थ्रू कर लेना, फ्रेजल वर्ब में पढ़ाया है, गो थ्रू या लुक थ्रू कर लेना। वेड थ्रू, लुक थ्रू, गो थ्रू, वेड थ्रू। रिव्यू कर लेना, प्रोब करते हो ना जांच पड़ताल, और जांच पड़ताल का उल्टा क्या, ये तो नेग्लेक्ट करना, ओवरलुक करना, ये वर्ड याद रखना। कंडोन करना ना, अरे किसी को ना अनदेखा करके माफ वाफ कर देना। कंडोन करना है मतलब चलो माफ करो, इग्नोर करो। डिसरिगार्ड करना, इग्नोर करना। देखो, इग्नोर 2 तरीके से होता है। किसी की गलती को ना, कभी कभी हम लाइफ में छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और कभी कभी कोई पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, वो तो हाईली नेगेटिव है ना। कभी कभी आपके पड़ोसी आपको बोलते हैं, मतलब बोल देते हैं, अरे आपका बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, अरे पड़ोसी की बात को इग्नोर करो, ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन कोई आपको अच्छा एडवाइस दे रहा है, इग्नोर करेंगे, वो तो नेगेटिव हो गया। तो इग्नोर हम दोनों सेंस में अपना ले लेते हैं। ये रिविजन वाला वर्ड है, पड़ोसी को इग्नोर करना है। प्यूनिटिव वर्ड को कैसे याद रखना है? प्यूनिटिव का मतलब भी होता है पनिशमेंट। प्यूनी वर्ड तो लग ही रहा है, प्यूनी वर्ड तो लग रहा है ना, पनिशमेंट में भी। पुनीत को पनिशमेंट मिला है, हाँ ऐसे भी याद किया था हमने, पुनीत को पनिशमेंट मिला, और प्यूनी वर्ड में भी ना पनिशमेंट में जैसा है वैसे प्यूनिटिव में भी पनिशमेंट। हाँ, एक हमने इससे किया था, एक बेवकूफ का फोटो लेके आए थे, पता नहीं वो कौन था, लॉर्ड पुनीत, जो बेवकूफ की तरह हंस रहा था, उसको देख के पिटने का मन हो रहा था। एक फोटो लेके आए थे लॉर्ड पुनीत, मीम वाला, उसको पनिश किया गया, लॉर्ड पुनीत। पिनल, जैसे आईपीसी के तहत इसको धारा इतने आईपीसी के तहत इसको फांसी दी जा रही है। आईपीसी इज इंडियन पिनल कोड। पिनल नहीं भी याद आ रहा है ना, पेनल्टी, आपको पेनल्टी देना होगा। पेनल्टी एक तरह का पनिशमेंट ही है ना, पेनल्टी एक तरह का पनिशमेंट है। तो पिनल का मतलब भी होता है पनिश करना, बदला लेना। और ये जो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, तो ये मत सोच लेना ना कि ये डिसिप्लिनरी का मतलब है ये डिसिप्लिन से रिलेटेड है। डिसिप्लिन इज अनुशासन से रिलेटेड है। दिस वर्ड हैज नथिंग टू डू विद डिसिप्लिनरी। ये डिसिप्लिनरी का मतलब है दंडनीय अपराध, रिवेंजफुल। इसको कैसे याद रखोगे? रिट्रीब्यूटरी या रिट्रीब्यूट, उसने ट्रिब्यूट नहीं दिया, ट्रिब्यूट मतलब रिस्पेक्ट नहीं दिया, उसीलिए तो उसको पनिशमेंट झेलना पड़ा, ट्रिब्यूट नहीं दिया। ट्रिब्यूनल कोर्ट्स होते हैं, हाँ पनिशमेंट देते हैं। रिटैलिएट, एक हाथ से ताली नहीं बजता है, रिटैलिएट। हाँ, रिटैलिएट का मतलब होता है बदला लेना, पलटकर वार करना, पनिशमेंट करना। ताली नहीं बजाया, किसी को आपने रिस्पेक्ट नहीं किया। हम किसी को रिस्पेक्ट करने के लिए ताली बजाते हैं ना, उसने दोबारा ताली नहीं बजाया, उसको पनिशमेंट मिला। उसने उसको रिस्पेक्ट, ट्रिब्यूट नहीं दिया, पनिशमेंट मिला। हर जगह और पनिशमेंट का उल्टा तो जानते हैं, इग्नोर करो। देखो, कंडोन, आप बोलोगे कि मैम अब कंडोन का मतलब भी तो आपने इग्नोर किया। कभी कभी हम किसी की गलती को इग्नोर करके ना उसको माफी दे देते हैं, उसको पार्डन कर देते हैं। रिवॉर्ड करना, एब्सॉल्व का मतलब भी है अब सॉल्व हो गया, अब केस सॉल्व हो गया, अब उसको माफी दे दो, अक्विट करो। ये मैंने आपको, हाँ एक मिनट, कल्प वर्ड बताया,
ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ ना, क्योंकि ये सब मैंने पढ़ा दिया, सिर्फ रिविजन कर रही हूँ। कल्प का मतलब ही होता है दोषी से रिलेटेड, दोषी कल्प। तो एक्स मतलब बाहर करना, एक्स कल्पेट करना मतलब दोषमुक्त करना, और इनकल्पेट किसी को दोषी करार देना। हाँ, तो यहाँ पे उसने माफ कर दिया, एक्सकल्पेट कर दिया, उसको माफ कर दिया। ओके, और एक्सेनोरेट, एक्स बाहर करना, एक्स का मतलब ही एक्सक्लूड करना, माफ कर देना उसको, माफ कर देना, माफ कर देना। और माफ कर देने का एक और वर्ड आपको लिखवाया था, आपको याद होगा, वी से लिखवाया था माफ कर देने का। कौन सा वर्ड लिखवाया था? यस, माफ कर देने का ये वर्ड है वीनियल। हाँ, और ये तो लिखवाया था, और इसके साथ साथ एक और वर्ड लिखवाया था, एक तो वीनिएल और एक होता है वीनल। तो ये वाला विनल का मतलब होता है पार्डनेबल, किसी को माफ कर देना, और ये तो विनल का मतलब होता है करप्ट, बहुत दुष्ट, बदमाश, करप्ट, अनैतिक व्यक्ति। बस आई का डिफरेंस, आई का डिफरेंस है। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट कैसे याद किया था? ऑब्लिटरेट, हाँ, कैसे याद किया था इसको? ऑब्लिटरेट का मतलब है एकदम नामो वॉश आउट कर देना, नामो निशान बर्बाद कर देना, नामो निशान मिटा देना। कैसे किया था? ये तो अपनी एक्स को तो याद है, अपनी एक्स को एक पंच मार के अपनी लाइफ से हटा दिया। हाँ, तो इसको लिटरेट को बाहर करो, लिटरेट को बाहर करो, हटा दो, इरेज कर देना। और ये देखो, हाँ, वॉश आउट कर देना, हटा देना, एक्स को एक पंच मार के अपनी लाइफ से बाहर कर दिया। इनकलकेट, इनकलकेट अलग होता है। इनकलकेट मतलब डेवलप करना, आइडियाज को अडॉप्ट करना। इनकलकेट, अपने अंदर नए नए वैल्यूज डालना। एनी, एनी लेट आकर, एनी को बुलाया था, एनी ही लेट, डेट पे, एनी नाम की लड़की को डेट पे बुलाया था, और डेट पे बेचारी लेट आई और सारा डेट को खत्म कर दिया। डिमोलिश तो पता है, डिमोलिश तो नामो निशान पता है। एनी लेट आकर, एक्सटर्मिनेट, ऑफिस में लेट आते हो तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, खत्म, वॉश आउट, आपकी सेवाओं को खत्म। डिस्ट्रॉय, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पेट, जिम जाकर एक्स्ट्रा पेट को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। रैवेज, रैवेज कैसे याद करोगे? रावण ने सब चीज खत्म कर दिया ना, रावण से याद कर सकते हो। रैवेज, रैवेज, रावण ने आकर सब चीज डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। सैवेज, सैवेज का मतलब भी होता है अनसिविलाइज, इनसिविलाइज लोग। सैवेज रिप्लाई, रूट आउट, जड़ से खत्म कर देना। इरेज, इरेजर, रेज हटा दिया। अबॉलिश, अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा, इरेडिकेट भी कर लिया है, इरेडिकेट का पोलियो को इरेडिकेट कर दिया, रैम शैकल कर दिया है, तबाह कर दिया है। चल, ऑब्लिविएट कर दिया, वेरी गुड। और ये तो खत्म कर देने का, निर्माण करना, रिवाइव, बिल्ड, प्रोड्यूस, डेवलप, ये तो पता ही। इफेस कर दिया, पुल डाउन कर दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपरनोवा। बिल्डिंग्स वगैरह को पुल डाउन कर देते हैं। पुल डाउन का मतलब भी है, कोई बिल्डिंग को पुल डाउन का मतलब है डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय कर देना। रिवीजन इसका भी हो गया। अब चलो जिद्दी के मेरे को वर्ड्स बताओगे। जैसे ये तो वर्ड आ गया पर्टी, बहुत अच्छा है जिद्दी के वर्ड, ये सब रिवीजन हो रहा है, ठीक है। पर्टिनेशियस, पर्टिनेशियस वर्ड आ गया, कैसे याद रखोगे? नहीं नहीं, पर्टिनेंट अलग है, पर्टिनेंट का मतलब तो रेलिवेंट हो गया। नहीं नहीं यार, टिन की तरह, टिन की तरह, या टीना, ये टीना बहुत जिद्दी है, या टिन की तरह एकदम जिद्दी है, जितना भी ठोको बजाओ ना, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। टिन की तरह, जिसमें ऑब्स्टिनेट भी है, ऑब्स्टिनेट में भी देख रहे हो टिन है, ऑब्स्टिनेट का मतलब भी जिद्दी है। टिन, टिन, टिन की तरह है, जितना भी टिन को ठोकोगे ना, कुछ होने वाला नहीं। टीना दा भी जिद्दी है। अच्छा, हाँ, अब आप मुझे यहाँ से बताते जाओगे। स्टबन तो पता है, ऑब्ड्यूरेट भी टिकाऊ, जिद पे टिका हुआ है। स्टीड फास्ट भी एकदम, फास्ट का मतलब एकदम अड़ा हुआ है, जिद्दी है। डॉग्ड, डॉग्ड को कैसे सिखाया है? डॉग्ड, डॉग्ड है, डॉग टेल है, जैसे बोलते हैं ना, ये डॉगी का पोच है, कभी सुधरेगा नहीं, जिद्दी। अड़ा हुआ मैन, अड़ा, अड़ा हुआ मैन, अड़ा हुआ मैन है। ईल्ड का मतलब होता है सरेंडर करना, और एक ईल्ड का मतलब उपज भी बताया है, और एक ईल्ड का मतलब होता है अनयील्डिंग, मतलब जो लोग समर्पण नहीं करते, जिद्दी होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं। रेजोल्यूट कैसे याद करोगे? न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लेते हो ना, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन लेते हो ना, दृढ़ निश्चय, एकदम जिद पकड़ लेते हो, दिस टाइम सीजीएल डू और डाई, और 2 जनवरी को खत्म। फर्म, डिटरमिन्ड, इनफ्लेक्सिबल है। और टेनिशियस है, टेनिशियस वर्ड भी, हाँ, टेनिशियस भी याद रखना, टेनिशियस या टेनासिटी,
इसका मतलब भी होता है जिद्दी। पिग हेडेड है, ये जो पिग होता है ना बहुत जिद्दी जानवर है। म्यूल इज खच्चर, खच्चर भी बहुत जिद्दी जानवर है। और ट्रांसजेंडर बताया था, ट्रांसिजेंट में ट्रांसजेंडर बहुत जिद्दी होते हैं, बिना पैसा लिए जाते नहीं है। तो ये पिग हेडेड है, ठीक है। बुल हेडेड है। इंट्रैक्टेबल, उस दिन आपके क्लोज टेस्ट में था ना, इनट्रेसेबल मतलब कोई छाप नहीं मिल रहा, बट इंट्रैक्टेबल जिसको ट्रैक पे नहीं लाया जा सकता, रास्ते पे नहीं लाया जा सकता, जिद्दी है। रिलेंटलेस, रिलेंटलेस लोग भी बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। इनएक्सोरेबल कैसे बताया था? एक्सो टिकिया बार, एक्सो एक बर्तन धोने वाला जो जिद्दी मैल को हटाता है, एक्सो बार से याद किया। विलफुल, अपने विल से काम करता है, अपने विश या अपनी इच्छा से काम करता है, जिद्दी है, हेडस्ट्रॉन्ग है। और फैक्ट्री में जो मजदूर है ना, वो जिद पकड़ के हड़ताल पे चले गए। और कैल, ये सब भी याद कर ले, ये सब भी लिखवाया ना। ऑसिफाइड, ओसिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जहां बोन्स को हार्डन किया जाता है। हार्डन करना मतलब कठोर। स्टिफ नेक, वेरी गुड। स्टिफ नेक्ड का मतलब भी होता है अकड़ू आदमी। कैल्शियम की तरह कठोर है, रिकैल्सिट्रेंट है, वेरी गुड। अनफ्लिंचिंग, याद किया है। हेड स्ट्रॉन्ग है, इसका दिमाग ना हेड स्ट्रॉन्ग। हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब मत सोच लेना इसका दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटेलिजेंट है, नहीं। ये हेड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से बहुत जिद्दी है। जिद्दी 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 का देखो सब वर्ड्स हो गया। पिग हेडेड हो गया, बुल हेडेड हो गया, स्टिफ नेक, अकड़ू टाइप वाले पर्सन। और ये लोग तो बहुत सीधे साधे हैं। डोसाइल, डॉक्टर के पास जाके सरेंडर कर दिया, सारा जिद खत्म हो जाता है। जितना भी डॉक्टर के पास जाते हो ना, सब जिद खत्म हो जाता है। कॉपी खुला है तो ठीक है, कॉपी खुला भी है तो देख के भी अगर आप बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं से आपका रिविजन ही तो हो रहा है। ये सबमिसिव है, सबमिट कर देना मतलब अपने आप को जमा कर देना, सरेंडर कर देना, जिद खत्म कर देना। चप्पल खा खा कर सारा जिद खत्म हो गया। प्लाइबल, प्लाई वर्ड है ना, PLAY, प्लाई या कंप्लाई, जिद खत्म कर देना, सरेंडर। और सर्वाइल है, सबसर्विएंट मेरे को सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब है हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहता है, जिद्दी नहीं। सबसर्विएंट का मतलब भी है, सबसर्विएंट आपको सर्व करता है, हमेशा आपकी सेवा में रहता है, जो आप बोलते हो मान लेता है। देखो कंप्लेसेंट है, इल्डिंग, यही सब। जिद्दी नहीं होते हैं ये लोग, सर में ओबीडियंट होते हैं। और एक और कर लेते हैं, उसके बाद नए वर्ड पे जाएंगे। आओ यूपी, कम यूपी, कम यूपी, यूपी आओ, उसके बाद मैं तुम्हारा एनकाउंटर करता हूँ। कमिपेंस का मतलब भी होता है पनिशमेंट, जैसे पेनल्टी किया था ना, पेनल्टी वैसे ही है। हाँ, यूपी आओ, मैं तुम्हारा एनकाउंटर करता हूँ, सजा देता हूँ। तो यहाँ से तो करवा दिया। कंपेंसेशन, आपको कंपेंसेशन देना होता है। कंपेंसेशन भी तो मुआवजा देना, मतलब भरपाई करना, पनिशमेंट ही एक तरह का। योगी बाबा। और ये है रिप्रेजल, ये तो बता दिया। रिटेलिएट, ताली नहीं बजाया। रेट्रीब्यूशन भी हो गया, रिवेंज भी हो गया। ये जो वेंज वर्ड होता है ना, ये वेंज बदला से रिलेटेड है। इसमें अवेंज भी आता है, इसमें रिवेंज भी आता है, इसमें वेंजियंस भी आता है। VENG वाला जो वेंज होता है ना, सब बदला, पनिशमेंट से रिलेटेड है। निमेसिस, हाँ, निमेसिस तो गॉडेस ऑफ पनिशमेंट है, ये तो किया आपने, गॉडेस ऑफ पनिशमेंट। सबको कैस्टिगेशन का मतलब भी होता है पनिशमेंट देना, कैस्टिगेट करना, निंदा करना, पनिश करना। और ये तो हमने कर लिया है ना, माफ कर देना, ठीक है। और माफ कर देने का ना, ये सब वर्ड याद रखो। प्यूनी वाला वर्ड याद रखो, प्यूनी, हाँ। एक तो प्यूनिटिव पनिशमेंट था, प्यूनिटिव वाला पनिशमेंट था ना। और इम्प्यूनिटिव का मतलब है माफ कर देना, एक्सकल्पेट भी माफ कर देना। एमनेस्टी याद रखना, ये वन वर्ड में आता है, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। एमनेस्टी मतलब जनरल माफी, जो जनरल माफी की घोषणा की जाती है, एक साथ बहुत सारे लोग को माफ कर दिया है, पढ़ा होगा आपने। पार्डन कर देना, पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने, जनरल पार्डन। चलो, माफ करने का सारा वर्ड्स हो गया है। रिवीजन हमारा हो गया है, पिछले क्लास में जितना किया हमारा करीब 20 वर्ड अब कर लेंगे रिवीजन। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि इस बैच को खत्म करके ना, इस बैच में प्रैक्टिस बैच जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस बैच में ना कई और चीजें आप सीखोगे। हमने कहाँ तक किया है 50s में? अरे रुको, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ना इसको। इडियम्स का रिवीजन थोड़ी होगा, इडियम्स का अभी मैं, इडियम्स का रिवीजन अब करना अपने से। एक मिनट, मैंने शायद ये करवाया था ना, एसोटेरिक करवा दिया था शायद, एसोटेरिक करवा दिया था, कैप्टिविटी क्लैंडेस्टाइन करवाया था, डिमिन्यूटिव करवाया था, हाँ डिमिन्यूटिव करवाया था। और इसका बोला था ना, इसको बहुत बड़ा बड़ा वर्ड्स है। डिमिन्यूटिव का मतलब होता है छोटा, छोटा छोटा, पिग्मी, लिलीपुट। और ये अब आ गया है डिमिन्यूटिव का मतलब है कोई भी चीज बहुत छोटा, और इसका उल्टा हो गया बहुत बड़ा। लार्ज तो सबको पता है,
ठीक है, ह्यूज भी सबको पता है, एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब भी पता है, बिग का मतलब भी पता है, ग्रेट का मतलब भी पता है, रुको रुको, ग्रेट का मतलब भी पता है, इमेंस, इमेंस का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा, ज्यादा, मैसिव, मास मतलब बहुत ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, ठीक है, और इसका ना जरूर कहीं वास्ट, वास्ट का मतलब भी बहुत भव्य, बड़ा, हैवी, कलोसल, अब कहीं ना कहीं कलोसल करवाया होगा, अब यहाँ ना बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको जोड़ने हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स जोड़िए, कहीं ना कहीं पीछे होगा मुझे लग रहा है, 11 12 कहीं कहीं है ना, किसमें है, कहीं ना कहीं होगा, कलोसल वगैरह कहीं करवाया होगा, कलोसल वर्ड है, मैमोथ कहीं पे है, 86 में है, 86 नंबर पे है, ओके रुको एक मिनट, एक मिनट, ये 86 में मैमोथ है, 86 है ये, पता नहीं कहीं होगा ये जरूर, कहीं पे होगा, कहीं ना कहीं ये है, अब नहीं दिख रहा है, पता नहीं रहता, सही बोल देते हैं उसे, चलो लिख लेंगे, कोई बात नहीं है, हम लोग यहीं पे लिख लेंगे, मेरे से ज्यादा तो आप लोग को याद है, लिख लेना, कॉपी में लिख लोगे, हाँ मैंने लिखवाया था, हाँ, ये जो ह्यूज है ना, इसका बहुत अच्छा अच्छा वर्ड्स है, ये सब तो आपको बच्चा वाला वर्ड है, ये तो सबको पता है, ठीक है, ये तो सबको पता है, अब हम इसका बहुत अच्छा अच्छा वर्ड लिखेंगे, कलोसल, कलोसल लिखेंगे, लिखेंगे मैमोथ, लिखते जाओ पहले, मैमोथ लिखेंगे, हाँ, फिर हम लोग लिखेंगे एलिफेंटाइन, बोलते जाना, एनॉर्मस तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, फिर लिखेंगे हम लोग बेही, 13 बेहीमोथ, मैमोथ लिख दिया है, फिर हम लोग लिखेंगे लॉफ्टी, फिर हम लोग लिखेंगे जाइजेंटिक, फिर हम लोग लिखेंगे प्रोडिजियस, ये मैंने आपको करवा दिया है रूट वर्ड में, कंफ्यूज वर्ड में, प्रोडिजियस, प्रोडिजियस, ओके, 18 वर्ड में लिख लो, ह्यूमोनगस, ह्यूमोनगस, कलोसल, और क्या बचा, बेहीमोथ, एलिफेंटाइन, प्रोडिजियस, लॉफ्टी, टाइटैनिक भी लिखी लो, टाइटैनिक, लॉफ्टी का मतलब भी होता है ना बहुत ह्यूज, बड़ा, लॉफ्टी बिल्डिंग्स, ट्रिमेंडस भी लिख लो, 20 में यहाँ लिखते जाइएगा, ट्रिमेंडस, कहीं होगा किसी के ऑप्शन में, ट्रिमेंडस काफी है, मैमोथ लिख दिया है, मैग्निफिसेंट का मतलब भी होता है बहुत ग्रैंड, शाही, वो भी लिख सकते हो, प्रोफाउंड थोड़ा डीप के सेंस में चला जाता है, किसी चीज की तीव्रता ज्यादा है, ओके, तो चलो इतना इतना, चलो इसको याद करवाना है, अब इसको याद करना है, प्रोफ्यूज भी होता है थोड़ा सा डीप, गहरा के सेंस में, अच्छा मॉन्यूमेंटल नहीं लिखा है ना, मॉन्यूमेंटल कहाँ लिख दूं, 21 में, मॉन्यूमेंटल का मतलब भी होता है ह्यूज, ह्यूज, एक मिनट लिख लिया है सबने, मैग्नेनिमस नहीं हो, मैग्नेनिमस मतलब जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका दिल बड़ा होता है वो अलग है, तो चलिए 14 पर क्या लिखा है, 14 में लॉफ्टी है, लॉफ्टी, एक और लिख लो, एक और लिख लो, लिख लो, लिवियाथन, ठीक है, गारगैंटुअन नहीं लिखा है, अरे लिखते जाइए, सबका मतलब होता है बड़ा, हम लोग रिवाइज करेंगे, 18 पे क्या लिखा है, 18 पे है ह्यूमोनगस, ट्रिमेंडस, इसको एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, अच्छे से करेंगे, एक बार अच्छे से लिखेंगे, जाइंटिक या जायंट सेम है ना, लिख लिया है, हो गया है ना, हाँ हो गया, एक बार हम लोग और अच्छे से याद करते हैं, सबसे पहले याद कर, ध्यान रखना, ये एलिफेंटाइन, एलिफेंट, एलिफेंट एक बहुत ह्यूज जानवर है, तो एलिफेंट का मतलब भी होता है ह्यूज, मॉन्स्टर्स भी लिख सकते हो, मॉन्स्टर का मतलब होता है ना, मॉन्स्टर्स का मतलब होता है ये जो राक्षस होते हैं ना, इसका बॉडी बहुत विशाल होता है, ये जो मैमोथ है ना, ये भी एलिफेंट की तरह एक प्रजाति है जो विलुप्त हो चुका है, और मैमोथ, MOTH, बेहीमोथ, MOTH, ये भी एक जीव है जो बहुत विशाल है, जो विलुप्त हो चुका है डायनासोर की तरह, आइस एज में, हाँ आइस एज में था,
लॉफ्टी, रुको अच्छे से कहाँ लिखूं मैं, बहुत अच्छे से लिखूं, चलो एक बार कर लेते हैं, ठीक है। एक बार विशाल का अच्छा से लिखता है, आप सही बोलते थे, अब पता चला मैम, थैंक यू। पहले 5 मार्क्स आते थे, अब मॉक में 42 आ रहा है। क्लोज टेस्ट पीक्यूआर से बहुत बेनिफिट हुआ है, तो अब आपके मॉक में ज्यादा आ रहा है ना, मेरी वजह से थोड़ी आ रहा है, बस आपने शायद प्रैक्टिस सेशन में रेगुलरिटी बनाया है, उसी वजह से आ रहा है। बात मेरी मानते नहीं हो, भटक जाते हो, ठीक है, भटक जाते हो, तो करोगे ना, आ जाएगा। ये ना मैं तो अपने डॉक्टर्स को भी बोलती हूँ, देखो कुछ नहीं, पढ़ा का पढ़ा रह जाता है। अगर मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है और मेरे को ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड सब बात पता है, मेरे को ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड सब बातें पता है, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो मेरे को कैसे आएगा। मैंने ड्रेस डिजाइनिंग और स्टिचिंग का कोर्स किया, अगर मैं करूंगी नहीं तो मेरे को सब पता है, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। तो प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है ना, ओनली प्रैक्टिस है, बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होता है। अगर आप बैंक ही जाते हो, ठीक है, बैंक ही जाते हो, तो आप देखोगे ना कि मुझे बैंक का उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन लेकिन हो सकता है कि कोई पढ़ना लिखना अलग चीज होता है, और प्रैक्टिस ऐसा नहीं है ना कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं वही एक्सपर्ट होते हैं। मुझे बैंक का, मैं बैंक बहुत कम जाती हूँ, लेकिन हो सकता है कि कोई मेरे से कम पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको मेरे से बैंक से रिलेटेड ज्यादा जानकारी है, क्योंकि उसको प्रैक्टिस है ना, बैंक आना जाना वो सब करने की। तो एवरीथिंग इज इन प्रैक्टिस। पढ़ा का पढ़ा रह जाता है, बच्चा को सब पता है, लेकिन जब सेंटेंस आता है ना तो उसको पता ही नहीं चल पाता है। और क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस ना मैंने देखा है, सब बच्चा का शुरू में कंप्लेन होता है, लेकिन दो तरह के बच्चे होते हैं, दो तरह के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखता है, कुछ भी हो जाए मैं तो टिका ही रहूंगा, और उसका इंप्रूव हुआ है, बिल्कुल हुआ। कुछ एक दो क्लोज टेस्ट में पेशेंस नहीं मिलता है और सरेंडर कर देते हैं, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो करना है, कलोसल से करते हैं, चलो। क्लोज टेस्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, तो आपका भी इंप्रूव हो जाएगा। आपको किसने मैसेज किया था, उनका नंबर मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। चलो पहले ना हम लोग अच्छे से इसको रिवाइज करते हैं। एक तो हमने छोटा वाला किया था, छोटा वाला का क्या था, मिनिएचर। ऐसा इसको, ये एग्जाम में आता है, इसको ऐसा पढ़ के जाना है ना कि गलती ना हो। हमने मिनिएचर किया था। मिनिएचर का मतलब होता है डिमिन्यूटिव, छोटा, मिनी। डिमिन्यूटिव का मतलब भी है, डिमिन्यूटिव का मतलब भी है छोटा, और स्मॉल और टाइनी तो पता ही है आपको, स्मॉल पता है, टाइनी पता है, और आपको मिनिस्क्यूल भी पता है। मिनी का मतलब भी होता है छोटा, ठीक है। और ड्वार्फिश पता है, ड्वार्फ का मतलब है बोना, छोटा। पिग्मी भी पता है, पिग्मी का मतलब भी होता है छोटा, चलो छोटा का तो हो गया। और पिथी, पिथी का मतलब है एकदम पिद्दी सा है, छोटा सा है, छोटा का तो हमने कर लिया था। और टर्स भी याद रखना, किसी भी चीज को टर्स, टर्स को याद रखो, उसका पर्स छोटा संक्षिप्त में, ठीक है। हो गया है, सब हो गया है, हाँ। अब आ जाओ बड़ा। सबसे पहले ये याद रखो, कलोसल, लड़कियों को पता है ना, कलोसल एक काजल होता है, ठीक है, कलोसल काजल होता है। कौन है, करीना कपूर इसकी है ना एड वगैरह पता नहीं करती थी पहले। कलोसल काजल होता है। और लड़कियां काजल क्यों लगाती है, काजल इसलिए लगाती है ना कि उनकी आंखें बड़ी दिखे, आंखें बड़ी बड़ी सुंदर दिखे, इसलिए काजल लगाती है। तो कलोसल का मतलब होता है बहुत ह्यूज, आई आई को सुंदर बड़ा बनाने के लिए, हाँ, ह्यूज। तो ह्यूज तो सबको पता है, ठीक है। नजर ना लगे, कोई ना नजर लगाने के लिए आपको बैठा नहीं है कि लड़की काजल लगा के चल रही है हर दिन नजर लगाने। किसको इतना टाइम है दूसरे को नजर लगाने का कि काजल लगा के चल रहे हैं। लड़कियां काजल लगाती है, उनकी आंखें बड़ी सुंदर दिखे, ठीक है। और ह्यूज हो गया। अब याद रखना मैमोथ, मैमोथ का शायद फोटो वगैरह इन्होंने भेजा है किसी ने, इसने इसने किसका भेज दिया है, अच्छा ये जियो बेहीमोथ, ये है कौन, मैमोथ, मैमोथ थोड़ा और, मैमोथ का देखो ये सब कैसे है, ये इतने विशाल दिख रहे हैं, अजीब सा विशाल है। तो याद रखना मैमोथ, मैमोथ वर्ड है, और उसी के ठीक नीचे, ये एग्जाम में आता है इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना, बेहीमोथ, ठीक है। ये दोनों विशाल होते हैं बहुत, इनका बॉडी बहुत ह्यूज होता है, साइज में बहुत बड़े होते हैं, हाँ, मैमोथ। एलिफेंट का मतलब मुझे तो बहुत आइडिया नहीं है, एलिफेंट का स्पीशीज है, ये बड़ा होता है, ठीक है। और जायंट है, बोलते हैं ना अरे ये तो जायंट है, राक्षस वाली पर्सनालिटी है, तो जायंट वर्ड से ही बना है जाइजेंटिक, जायंट नाउन है और ये एडजेक्टिव, और जायंट को एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर लेते हैं। टाइटैनिक भी बहुत बड़ा जहाज था, ये भी हो गया। एलिफेंटाइन तो याद रहेगा ना एली, एलिफेंट की तरह है, एलिफेंटाइन याद रहेगा। और मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट तो ऐतिहासिक स्मारक होता है, ताजमहल और वो सब, लेकिन जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना वो भी तो बहुत विशाल होते हैं, भव्य होता है मॉन्यूमेंटल, ये इसका मतलब भी होता है बड़ा, बड़ा, ठीक है, हाँ।
मॉन्यूमेंटल, भव्य, और ग्रैंड वगैरह तो पता ही है। एलिफेंटाइन तो लिख दिया है ना, एलिफेंटाइन तो लिख ही दिया है, टाइटैनिक का, ये याद रखो। गारगैन बहुत ग्रैंड है, गारगैंटुअन इसका मतलब भी होता है ना बहुत, गारगैंटुअन का मतलब भी होता है बहुत विशाल, भव्य। मैसिव का मतलब भी है, चलो भव्य। और ये वर्ड याद रखो, एक ह्यूमोंगस, ह्यूमोंगस देख के ही लग रहा है ना, ह्यूमोंगस ह्यूमन की तरह मतलब नहीं है, मतलब बहुत राक्षस है एकदम, मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्टर मतलब राक्षस वाली। बेन 10 से याद आ गया ये तो, हाँ, ह्यूमोंगस, मॉन्स्ट्रस, राक्षस टाइप, राक्षस का बॉडी भी तो विशाल होता है। अरे आप बाउंटीएस कहाँ से चला गया, ये तो कोई चीज प्रचुर मात्रा में ज्यादा है वो, और ये साइज में ज्यादा, साइज में ज्यादा है, ठीक है। हाँ, और मैंने आपको ना वहां पे पढ़ाया था, आपको याद होगा जब मैंने आपको कंफ्यूज वर्ड पढ़ाया था, उसमें प्रोडिजी पढ़ाया था। हाँ, ये सब याद रखना। गारगैंटुअन की तरह ना एक और वर्ड है लेविएंथन, लेविएंथन, गार्गुअन, सबका मतलब होता है विशाल। हाँ, आपको मैंने प्रोडिगल पढ़ाया था, और उसके बाद मैंने आपको वहीं पे प्रोडिजी पढ़ाया था, और प्रोडिजियस पढ़ाया था, वहीं पे आपको बहुत सारा वर्ड मैंने करवाया था, ठीक है। प्रोडिगल लोग, प्रोडिजी का मतलब होता है बहुत टैलेंटेड चाइल्ड, जो बच्चा बहुत कम एज में ही टैलेंटेड है, टैलेंटेड चाइल्ड को। और प्रोडिगल का क्या बताया था, प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट है। और ये प्रोडिजियस का मतलब बहुत विशाल बताया, बहुत खर्चा करता है, लैविश है, ह्यूज, स्पेंड थ्रिफ्ट, ये वाला वहीं पे किया था हम लोगों ने इसको। तो ये तो सारा वर्ड्स लिख लीजिए, ह्यूमोंगस, मॉन्स्ट्रस, ट्रिमेंडस, प्रोडिजियस, सबका मतलब होता है भव्य, विशाल। डेक्स्ट्रस नहीं, डेक्स्ट्रस का मतलब तो एक्सपर्ट होता है। डन, इसका बहुत अच्छा अच्छा वर्ड है, लिख लेना, रोज सुबह उठ के कलोसल दर्शन कर लेना। लॉफ्टी बिल्डिंग्स, ये आता है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, किले को ना बोलते हैं लॉफ्टी, लॉफ्टी बिल्डिंग्स। लॉफ्टी बिल्डिंग्स का मतलब होता है साइज में वेरी टॉल बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बोलते हैं। लॉफ्टी क्रिकेट शॉट्स भी होता है, ओके। लॉफ्टी क्रिकेट शॉट्स का मतलब ही होता होगा बहुत बड़ा शॉट। इमेंस, इमेंस का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा। इमेंस प्लेजर, मुझे ये सूचित करते हुए अपार खुशी हो रही है, इमेंस धोनी का है। लॉफ्टी इज इक्वल टू सॉफ्टी, सॉफ्टी खाते हैं ना ऊपर तक, क्रीम भर देते हैं सॉफ्टी में से, घुमा घुमा के एकदम ऊपर तक क्रीम डाल देते हैं। अच्छा, गेम लॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है, ह्यूज कंपनी है। चलिए हो गया है, याद कर लेना है इसको। हाँ, डिस्क्रिपेंसी, ये वर्ड कहीं सुना है? अगर आप कुछ डिस्क्रिपेंसी आ गया, डिस्क्रिपेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी? डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है, हाँ बताओ एग्जाम क्या है, वैशग्निता, वेरिएंट, नहीं नहीं, हिंदी बताओ, हिंदी हिंदी। विसंगति, विसंगति, अच्छा विसंगत। हाँ, डिस्क्रिपेंसी इन इनकम, डिफरेंस होता है, इनकम में डिस्क्रिपेंसी हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, विस्मता वही वाला है। असमता, असमानता, वही है असमानता, डिस्क्रिपेंसी। कुछ असमानता हिंदी में लिख लो ना, असमानता, वैसे असमानता ऑप्शन में आएगा नहीं, असमानता कुछ होगा। डिस्क्रिपेंसी इन इनकम, हाँ, जैसे अन अकेडमी का जब सैलरी आता है, फिर उनका एक फॉर्म आता है, अगर आपको सैलरी में कोई डिस्क्रिपेंसी लग रहा है, कुछ सैलरी इधर उधर हो गया है, कुछ ऊपर नीचे, मतलब हम जो भेज रहे हैं और आपको कुछ लग रहा है कि अलग भेजा है, इस फॉर्म को भर दीजिएगा। डिस्क्रिपेंसी इज डिफरेंट। तो डिफरेंस इन अकाउंट्स, इन स्टेटमेंट में भी डिस्क्रिपेंसी हो सकता है। हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच गायब है, देख के ही पता लग रहा है ना, सब देख के ही पता लग जा रहा है, ANCE MENT देख के ही पता चल जा रहा है कि नाउन। अब एक प्रो हो गए हो, एक्सपर्ट हो गए हो, आप मुझे बताओगे, नहीं लिखा है ना तो पूछ के बताओगे, ऐसा बोलोगे कि मैम ये नाउन है ना, ऑप्शन देख के तो पता चल जाएगा। ऑप्शन देख के तो पता चल ही गया है। डिसएग्रीमेंट होना, वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है, वैरी मतलब असमानता, असमानता। इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट मतलब एक जैसा, और इनकंसिस्टेंसी मतलब असमानता। आपने पैरिटी वर्ड सुना होगा, रिजल्ट आता है तो लिखा हुआ मिलता है ना, द गर्ल्स आर एट पार विथ बॉयज,
गर्ल्स बॉयज के समांतर है, और उसी को हम बोलते हैं पैरिटी। पैरिटी का मतलब है इक्वालिटी, समांतर, और डिस्पैरिटी मतलब समांतर नहीं है। डिस्पैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। डिसएग्रीमेंट है, दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं। डिस्कॉर्डेंस, अकॉर्डेंस वर्ड होता है अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, और डिस्कॉर्ड है मतलब असमानता है। मैथ्स में कॉन्ग्रुएंट वो सब पढ़ते हो ना, क्या होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, एंगल्स, क्या होता है मैथ्स में? कॉन्ग्रुएंट समांतर को बोलते हैं ना, सिमिलैरिटी, और इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब है सिमिलैरिटी नहीं है, असमानता है। कॉन्ग्रुएंटी, डिसिमिलैरिटी, इनइक्वालिटी। डिस्क्रिपेंसी इन इनकम, बहुत जगह मेल और फीमेल के इनकम में भेदभाव किया जाता है, असमानता होता है बहुत जगह, क्या 80% जगह पे है ही। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी कुछ भी होता है, मतलब वैरी करता है, कुछ भी आपको असमानता दिख रहा है तो आप खबर करिए। बॉयज गर्ल्स के इक्वल क्यों नहीं, घर में भेदभाव होता है? अब नहीं होता है, पहले कर देते थे। पेरेंट्स को भी ना आत्मा जाग चुकी है, वो सब गर्ल्स को ही बढ़ाने में फायदा है आगे। अच्छा, बॉयज के साथ भेदभाव होता है, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है, बॉयज भी ठीक ही ठाक होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भी तो भेदभाव होता है। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड हर दिन सुनते हो, ठीक है। सही बोला है। एसएससी के फीस में ना गर्ल्स का फीस माफ कर दिया है, गलत बात है, गलत बात है, हाँ, भेदभाव किया है। गर्ल्स को क्या है, गर्ल्स जो बॉयज फीस उनका भी माफ कर दो। गर्ल्स भी, अभी उनके पास भी जॉब नहीं है, ब्रो लोग के पास भी नहीं है, तो इनका फीस क्यों ये कर दिया, गलत बात है। सही बोला है, अच्छा है मैम। हाँ, तो गर्ल्स फीस माफ करवाने में तो खुश हो जाते हो, टॉलरेट करने लगते हो, और बाकी जगह पे समानता चाहिए, गलत बात है। ये तो मैं अपने ब्रो लोग के साथ हूँ, ब्रो लोग के साथ हूँ। डिस्क्रिपेंसी इज भेदभाव, असमानता। कारगिल, ये नहीं समझ में आया, असमानता, असमानता, भेदभाव, ये इसको और कौन सी हिंदी चाहिए, कौन सी हिंदी चाहिए इसका? लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है। सैलरी में भी होना चाहिए, सही बोला। हो गया, लिख लिया ये वाला, डिस्क्रिपेंसीज, भेदभाव, डिसिमिलैरिटी, इनइक्वालिटी, सैलरी हाफ देना चाहिए। और ये तो असमानता का उल्टा क्या है, एग्रीमेंट है, असमानता नहीं है। डिस्कॉर्डेंस का मतलब है, डिस्कॉर्ड मतलब भेदभाव हो रहा है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। डिस्कॉर्ड कराया था, और ये तो कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है सहमत होना, एग्रीमेंट होना, हार्मनी में है। हार्मनी मतलब एकदम सुर ताल में, एग्रीमेंट में चल रहा है। ये कॉन्कर का मतलब भी होता है सहमत होना, ठीक है। ये वाला कॉन्कर का मतलब होता है कब्जा कर लेना, कैप्चर कर लेना। अरे बस हो गया ना, जो जैसा बना है ना उसको एक्सेप्ट करके चलना है। हमारी सोसाइटी में ना बहुत सारा चीज बना हुआ है, और ज्यादा ना उसके लिए इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ना है। हाँ, अब कंप्लेन करो, ये करो, वो करो, कुछ होता नहीं, उसी में अपना रास्ता बना के आगे बढ़ना। यूनिटी में रहना, एक साथ रहना। यूनिसन का मतलब भी होता है एग्रीमेंट में रहना, यूनियन में रहना। पैरिटी, पैरिटी का मतलब भी होता है समानता, और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा था ना डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी इज असमानता। जैसा बना एक्सेप्ट करते हुए चलना है, कहीं बॉयज को फायदा हो जाता है, कहीं गर्ल्स को फायदा हो जाता है। कुछ कुछ चीज आपको एक्सेप्ट करना होगा। हाँ, एग्रीमेंट में चल रहा है, कोई असमानता नहीं है, सुरताल, पैरिटी, सब। बॉयज को फायदा नहीं है ना, बॉयज को बहुत जगह पे उनको फायदा हो जाता है, बहुत जगह पे फायदा है। ओके, ये हो गया। वॉल्यूबल, ये वही है, इसको तो थोड़ा सा जल्दी करना होगा। ये मैंने आपको करवा दिया था, जो बातू नहीं करवाया था ना उसमें करवाया है, शायद ये करवा भी दिया है। वॉल्यूबल एकदम वॉल्यूम, वॉल्यूम हाई करके बात करता है, एकदम बातू नहीं है, ठीक है। वॉल्यूबल ये मैंने आपको करवा भी दिया। वॉल्यूबल का मतलब होता है टॉकेटिव लोग। गैरुलस, टॉकेटिव का एकदम वर्ड याद रखो।
ये लोग चैटी होते हैं, ये लोग गैबी। कल हमने इडियम्स में एक वर्ड किया था, गिफ्ट ऑफ गैब, अच्छे वक्ता को बोलते हैं, ओरेटर को, और वही गैबी है, माउदी है, दिन भर मुंह खोल के बात करता। लोक में करवाया था, लोक का मतलब है बोलना, जो लोग बहुत ज्यादा लोकेशियस होते हैं, बातूनी है, चैटी करते हैं। वर्बोस, वर्बल याद रखना, वर्बल का मतलब भी होता है मौखिक, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, एक शब्द, एक लाइन को ना इतने सारे शब्दों में बोलेंगे, वर्ड ही होते हैं। माउदी होते हैं, हाँ, बहुत माउदी भी होता है ना, बहुत ज्यादा मुंह खोल खोल के बोलते हैं, माउदी तो लिखा ही है, ये हमने कर लिया है। गप करता है, गैबी है जो बहुत ज्यादा गप करता है, चैटी, लोक्वेशियस, गैबी, ये हमने कर लिया था। और ये तो लाउड, और ये लोग तो शांत होते हैं, ये हमने कर लिया है। रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं है। टैक्सी टर्न करते समय ड्राइवर शांत रहता है। लेकॉनिक, टाइट लिप, मुंह बंद करके रखना। ये अनकम्युनिकेटिव होते हैं, किसी से कम्युनिकेट नहीं करते, बातचीत नहीं करते। लैक, लैक मतलब कमी, इनके बातों में कमी होती है, मतलब बहुत कम में ही बहुत कुछ बोल देते हैं। अनकम्युनिकेटेड, टाइट लिप्ड होते हैं। शांत का ना दो वर्ड याद रखना, जैसे बातूनी का, एक मिनट, जैसे बातूनी का ये सब वर्ड याद रखना, बहुत टॉकेटिव है, टॉकेटिव तो सब ये याद रखना, और गैरुलस याद रखना। गैरुलस का मतलब भी होता है बातूनी, और तीसरा वर्ड आप बहुत याद रखना, लोक्वेशियस, हाँ, लोक्वेशियस। ये तीन वर्ड बातूनी का जैसे याद रखोगे ना, टॉकेटिव, गैरुलस और लोक्वेशियस, उसी तरह जो लोग शांत रहते हैं ना, उसका मतलब, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उसका एक वर्ड ये याद रखना, रेटिसेंट, रेटिसेंट याद रखना। और ये मतलब मेन आपके ऑप्शन में आता है, टैसीटर्न, टैक्सी टर्न करते समय ड्राइवर एकदम शांत रहता है, रेटिसेंट रहता है। ये तो जो लोग बहुत चुप रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, और ये तो जो दिन भर बकबक करते रहते हैं। प्रोलिक्स भी बोल सकते हो, बहुत बड़ा चढ़ा के चीजों को बहुत सारे शब्दों में बोलो। टाइट लिप्ड होते हैं, अपनी लिप को ना मुंह बंद करके रखो, जिप योर लिप, जिप योर लिप बंद करके रखो, टाइट लिप। लेकॉनिक होते हैं, लेकॉनिक भी याद करना। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं ना, जो थोड़े जल्दी लोगों से घुलते मिलते नहीं है, ये तो मैंने आपको करवाया है। एक होता है इंट्रोवर्ट, जो रिजर्व्ड होते हैं, वही जो कम बात करते हैं, रिजर्व्ड होते हैं। और एक्सट्रोवर्ट तो कुछ ज्यादा ही लोगों से घुल मिल जाते हैं, सोशेबल। वर्बिटम का मतलब होता है हु बहू, एग्जैक्ट, ये तो कुछ ज्यादा ही होते हैं। और एक आपको करवाया था, एम्बीवर्ट भी करवाया था। एम्बीवर्ट का मतलब होता है जिसमें दोनों गुण होता है, जो ना बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, ना बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ना लोगों से बहुत ज्यादा जल्दी इंटरेक्ट करते हैं, ना बहुत ज्यादा रिजर्व। जैसे आई एम एम्बीवर्ट, मैं बहुत ज्यादा रिजर्व भी नहीं हूँ, बहुत सोशल भी नहीं हूँ, आई एम एम्बीवर्ट। जगह के हिसाब से, हाँ। सौरभ भैया ने नहीं किया है कॉल, अरे मैं डांटूंगी सौरभ भैया को, रात में मत किया करो ना उसको, मैं रात में मत किया करो, 8-9 बजे नहीं किया करो, वो सब जिम विम जाते हैं, उस समय मत किया करो, पता नहीं किस लिए सब जिम जाते हैं। लाउड माउथ का मतलब है बहुत बोलना, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, फिट रहने के लिए जाते हैं। सर सोशेबल है, हाँ, काम धाम नहीं है, जिम जाओ। मैं डांटूंगी, फोन क्यों नहीं उठाया। लिख लिया ये, हाँ, कल 3:30 बजे वाली क्लास वो डाले ही नहीं थे, वो शायद ना कंफ्यूजन में रह गए थे, मैंने कल के लिए भी बोला था, वो कंफ्यूजन में रह गए थे ना कि मार्च 1, 2, 3 को डालना है क्लास। कोई बात नहीं, हमारे पास 3 दिन है, प्रिपोजिशन हो जाए। हाँ, क्लोज टेस्ट के लिए किससे बात करूं मैम, तो क्लोज टेस्ट के लिए मेरे से बात करना है ना, कौन आपको क्लोज टेस्ट पढ़ाएगा, सौरभ विकास आके आपको क्लोज टेस्ट पढ़ाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगी ना क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के लिए किससे बात करें, अन अकेडमी से बात करें। वो तो एक बार आपका एडमिशन लिया, भूल गया, अन अकेडमी आप भूल गया, आज है, आज है 3:30, उसके बाद तो सौरभ विकास ही सब डील करते हैं। चलो हो गया ये। अब आ जाओ, अलैक्रिटी। अलैक्रिटी का मतलब होता है ना बहुत तत्परता, इसकी हिंदी देखो, मैं तो तत्परता के साथ कोई काम कर रहे हो, बहुत क्विकनेस के साथ, क्विकनेस मतलब बहुत तेजी से, फुर्तीला, हाँ हिंदी लिखो, पता नहीं कुछ ऐसे ही लिखते हैं ना, फुर्ती, बड़ी छोटी कुछ भी होगा, फुर्तीला, फुर्तीले को बोलते हैं क्विकनेस। लाइव वायर है, हाँ
लाइव वायर लोग बहुत फुर्तीले एनर्जेटिक होते हैं, लाइव वायर। ऐसे लोग को ना फुल ऑफ बीन्स बोलते हैं, फुल ऑफ बीन्स बोलते हैं। ऐसे लोग को फुल ऑफ स्टीम बोलते हैं, फुल ऑफ भाप से भरा हुआ। ठीक है, तो बहुत तत्परता फुर्तीले लोग को बोलते हैं। सबसे ज्यादा हिंदी ना हम लोग के बैच में कारगिल को चाहिए। ठीक है ना, कारगिल तत्परता फुर्तीला अच्छा है, मतलब है। एक मिनट देखने दो, उसी को हिंदी चाहिए। एक तो सेलेरिटी भी लिख दो, सेलेरिटी। इसको सबसे हिंदी ऑप्शन, इसको हिंदी में चाहिए। इसके एग्जाम में ना ऑप्शन में, बाकी स्टूडेंट में आएगा क्विकनेस, इसके कारगिल में आएगा फुर्तीला, फुर्तीला आएगा ऑप्शन। चलो निम्बल कहाँ गया? निम्बल नहीं है इसमें, निम्बल भी लिखो, निम्बलनेस नहीं डाला होगा ना, क्योंकि निम्बल एडजेक्टिव है, निम्बलनेस लिख लो। निम्बलनेस, एक मिनट एक मिनट, सबसे पहले लिखो एजाइल। एजाइल वर्ड है, और इसको ना एजाइल वर्ड हो या एजिलिटी हो, एजाइल एडजेक्टिव है, एजिलिटी नाउन है। इसको ना काइंडली फ्रेजाइल से मत कंफ्यूज होना। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब तो बहुत डेलिकेट, नाजुक, कमजोर होता है। कमजोर, कमजोर, बहुत फ्रेजाइल है। जो जब आप शीशे का कोई क्रॉकरी वगैरह खरीदते हो ना, शीशे का डिनर सेट वगैरह खरीदते हो, तो ऊपर लिखा हुआ मिलता है हैंडल विद केयर, हैंडल विद केयर, हाईली फ्रेजाइल। हाईली फ्रेजाइल है मतलब बहुत नाजुक है, शीशे का है, नाजुक है, बहुत कमजोर है, मतलब अच्छे से केयर करना। और ये अजाइल का मतलब होता है बहुत फुर्तीला। एजाइल को कैसे याद करो? ये तो फ्रेजाइल, एजाइल, एजाइल इज वेरी एक्टिव। फ्रेजाइल छोड़ो, एजाइल बताओ। एजाइल। निम्बल तो नींबू पानी वाला कर लेंगे हम लोग। अगला अगला करता है। अगला अगला करता है, आगे आगे। ये इतना फुर्तीला है ना, आगे आगे चलते रहता है। अगला क्वेश्चन मैम, जो बहुत ज्यादा क्विक होते हैं मैम, अगला क्वेश्चन, अगला अगला करता है, आगे आगे चलता है, बहुत फुर्ती है, आगे आगे चलता है। यंग एज में सब फुर्तीले होते हैं, एज। अजय देवगन है, पता नहीं इनका अजय देवगन एग्जाम में ये देख के अजय देवगन आएगा याद। अजय देवगन है। एजाइल, आगे आगे चलता है, एज के साथ फुर्तीला है। आग लगने में, आग लगाने में आगे रहता है। अच्छा, बहुत फुर्ती है इसको आग लगाने में। आग से याद रखेंगे, आग आगे आगे रहता है। एजाइल वैसे सबको याद होता है, एजाइल का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा क्विक, फुर्तीला। शुभम गिल को याद रखेंगे, अभी सुना भी नहीं है कौन है शुभम गिल। कौन है शुभम गिल फुर्तीला है, कभी सुना ही नहीं है नाम। एलैक्रिटी। चलो एजाइल वर्ड, सबसे पहले तो वही वाला हम लोग ये याद रखेंगे, एलैक्रिटी। इसको कैसे याद रखना, ये आता है एग्जाम में, एलैक्रिटी हो या एलैक्रिटस हो, सबका मतलब है फुर्ती और फुर्तीला। फुर्ती नाउन है, फुर्तीला एडजेक्टिव है। हाँ, तो कैसे याद रखोगे? ओडीआई डबल सेंचुरी, हाँ, सचिन का सन इन लॉ है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गई, हाँ समझ गई, मुझे याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। सचिन का बहुत फुर्तीला है। हमारी भाभी कैसी है, वो सारा भाभी वाला है, हाँ वही है वो। तो एलैक्रिटी कैसे याद रखोगे? एलैक्रिटी या एलैक्रिटस हो, मतलब इसको कैसे याद करोगे? मतलब इसका मतलब होता है बहुत फुर्ती, कैसे याद रखोगे? अलार्म से, अलार्म, अच्छा अलार्म है, अलार्म। बहुत फुर्तीला व्यक्ति है, एकदम अलार्म लगा के, जैसे अलार्म बजता है ना उठ जाता है, अलार्म अलार्म। और भी कुछ अच्छा बताइए। 1 लाख, अच्छा, और लाख। और लाख, किसी को 1 लाख रुपए दोगे ना फुर्ती, एक और लाख, 1 लाख में तो फुर्ती से काम करेगा वो। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख रुपए दोगे तो फुर्ती से आपका काम कर देगा। और दूसरा, 1 लाख में पूरी फुर्ती आ जाएगी। रीति एनर्जेटिक है, रीति वीटी कुछ नहीं याद आने वाला है, रीति एनर्जेटिक है। 1 लाख मारा तो सारा फुर्ती में काम करने लगा। अल्लाह फुर्ती, अल्लाह ने कीर्ति को फुर्ती बनाया है, अल्लाह ने कीर्ति को फुर्तीला बनाया है। चलो ठीक है। कुछ भी बना रहे हैं, याद हो गया। 1 लाख रुपया दोगे किसी को, 1 लाख रुपया किसी को दोगे ना, अल्लाह फुर्ती में आपका काम कर दे।
1 लाख वाला सही है। एजाइल भी सही है। ईगर, किसी काम के लिए बहुत ईगर हो, इच्छुक हो, फुर्ती में करते हो, रेडी हो, विलिंग हो। विलिंग का मतलब ये एकदम रेडी रहना। प्रॉम्प्ट बोलते हैं ना, गवर्नमेंट ने बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। प्रॉम्प्ट होना मतलब बहुत पंक्चुअल होता है, बिना देरी के एक्शन लिया। और एक लिखो निम्बल। निम्बल को तो नींबू पानी से याद रखो। निम्बल, कभी कभी आप निम्बल नींबू पानी पीने के बाद बहुत ज्यादा डल फील करते हो, नींबू पानी पीने के बाद ना आपके अंदर एक अलग से फुर्ती आ जाती है। स्विफ्ट है, स्विफ्टनेस, स्विफ्ट मारुति कार, स्विफ्टनेस, फुर्ती आ जाती है। और सेलैरिटी से याद करो। सेलैरिटी का मतलब भी तेजी से। सेलैरिटी कैसे याद करोगे? एक्सेलरेट। एक्सेलरेट में भी सेल, CEL है ना। सेलर, सेलर मतलब कोई भी काम एक्सेलरेटर से हम स्पीड को आगे बढ़ाते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। क्विकनेस। सेलिब्रिटी लोग ना बहुत क्विक होते हैं। सेलिब्रिटी, हाँ, सेलिब्रिटी लोग भी बहुत फुर्तीले, तुरंत तुरंत मेकअप, तुरंत तुरंत ड्रेस बदल के आ जाते हैं, फुर्तीले होते हैं। सेल डालते ही उसको फुर्ती आ जाती है। सेरेलेक, हाँ। बच्चे को सेरेलेक खिला दोगे ना, छोटा बच्चा सेरेलेक खाता है, सेरेलेक उसको खिलाते साथ बच्चा में फुर्ती आ जाता है। सेरेलैक, सेरेलैक। सेलेरिटी को सेलिब्रिटी से याद कर लो। सेलिब्रिटीज बहुत फुर्तीले होते हैं, बहुत क्विक होते हैं, और गाड़ी का एक्सेलरेटर क्विक के लिए यूज करते हैं। सेलेरियो कार, बहुत तेजी से भागता है। सेरेलैक खाने से फुर्ती आ जाती है। सैलरी मिलते ही फुर्ती आ जाती है, सही बोला। सैलरी, सैलरी मिलते ही, 1 लाख मिलते ही फुर्ती आ जाती है। और सैलरी का स्पेलिंग सही लिखना है। एग्जाम में जॉब मिलेगा, ये वाली सैलरी का स्पेलिंग ई थोड़ी होती, ए, सही लिखना है। तो याद रखना, अलैक्रिटी, 1 लाख मिल गया, एक अ लाख। इफ आई गिव यू अ लाख रुपीज, सिलेक्शन हो जाएगा। कोई आपको अ लाख रुपी देगा ना, तुम फुर्ती से स्पीड में जाके इंटरव्यू देके आ जाओगे वहां। अरे मैंने तो आप ही के यहाँ से कोचिंग किया है, मैंने तो भर भर के दिन रात आप ही का बैच देखते रहता था, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। वहीं पे चले जाओगे फुर्ती में इंटरव्यू देने के लिए 1 लाख रुपए में। क्विकनेस हो गया, नींबू पानी पियोगे वहां तो नींबू पानी देंगे, जाओगे और फुर्ती आ जाएगी। सेलिब्रिटी, आपको तो सेलिब्रिटी माना जाएगा, क्विकनेस है, याद कर लो। और ये तो बहुत प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट का मतलब भी है तेजी से। एक्सेलरेट मतलब खुशी बनाना, नींबू पानी पिलाकर बाहर निकाल देंगे, प्रॉम्प्ट लोग होते हैं। रेडीनेस, ईगरनेस, तत्परता से काम करना। लेस जो है ना, ये किसी वर्ड में लेस लग जाता है, केयरलेस, तो वो एडजेक्टिव बना देता है। और किसी वर्ड में नेस लग जाता है ना, तो वो नाउन बन जाता है। काइंडनेस, यही है कमाल नेस और लेस का। नेस में नाउन बन जाता है। अलैक्रिटी का मतलब है तत्परता, सही करने से। और ये जो लोग होते हैं ना, इनके अंदर फुर्ती होती ही नहीं। ये ल्यूकवार्म होते हैं। ल्यूकवार्म मतलब बहुत अनविलिंग है, हो रहा, कुछ तत्परता है नहीं। अपैथेटिक लोग है, इनको कुछ मतलब ही नहीं। आलसी, अपैथेटिक, इसका ना मैंने बहुत ज्यादा करवा दिया, इसीलिए थोड़ा सा उदासीन लोग है, कोई मतलब ही नहीं है। पैसिव है। एक्टिव लोग होते हैं ना, पैसिव। न्यूट्रल अलग हो गया। न्यूट्रल तो ना आपका सपोर्ट ना मेरा सपोर्ट, बीच का रास्ता। ये तो अनकंसर्न, इनके अंदर ना कुछ फुर्ती वगैरह है नहीं, उदासीन है, इम्पैसिव लोग हैं। अरे भगवान ने आपको इमोशंस दिए हैं, तो कुछ तो दिखाना है ना। या तो ना ही बोलो फुर्ती में, या तो यस ही बोलो फुर्ती में। ऐसे लोग दूसरे होते। हाँ, वॉल्यूशन वर्ड आ गया। मीन्स के लिए ना आज 11:30 बजे आशीर्वाद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। वॉयलेशन, ओके, वॉयलेशन करना मतलब ब्रीच करना, नियम कानून तोड़ना, ठीक है। एक मिनट, वॉयलेशन, नियम कानून को वॉयलेट करते हो ना, नियम कानून तोड़ना। रुको, लाऊंगी वो। नियम कानून तोड़ देते हो, वॉयलेशन ऑफ लॉज, वॉयलेट करना, रूल्स वगैरह को वॉयलेट करना, नियम कानून को। ये VIO है, और ये है वॉल्यूशन। ये तो वॉयलेट या वॉयलेशन है, उल्लंघन करना। और ये वॉल्यूशन, वॉल्यूशन का मतलब होता है ना अपनी स्वेच्छा से कोई काम करना, अपने स्वेच्छा से, अपने विश, अपने विल से।
अपनी स्वेच्छा से। तो वॉल्यूशन अलग वर्ड है। वॉल्यूशन को वैसे आप याद कर सकते हो, वॉलेंटरी। वॉलेंटरी है ना, वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब है अपनी स्वेच्छा से काम करना, अपनी मन मर्जी से। वॉलेंटरी, वॉल है VOL, यहाँ भी वी, और ये है वायो, वॉयलेशन, अपने डिस्क्रिशन से। वॉलेंटरी रिटायरमेंट, VRS लेते हैं ना रिटायरमेंट के पहले, कुछ है अपने रिटायरमेंट से पहले वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स होते हैं। तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट मतलब अपनी स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया, अभी उनका एज नहीं हुआ था, पहले ही ले लिया अपनी चॉइस से। वॉल्यूशन का मतलब होता है अपनी स्वेच्छा, योर चॉइस, अपनी इच्छा से। जैसे बोलते हैं ना, इट इज एट, ये वाला फ्रेज याद रखना, एट लगता है, एट योर डिस्क्रिशन। या प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर भी तो होता है, अपनी इच्छा से वो किसी का वो भी फांसी भी माफ कर सकते हैं। इट इज, मैंने आप बोलोगे ना, अरे आप पे है, आपका मन है करो, आपका नहीं मन है मत करो। इट इज एट योर डिस्क्रिशन, ये आपका विल है, आपका चॉइस। पार्डन पावर मिलता है, गवर्नमेंट वहां पे अपना वीटो यूज करते हैं, प्रेसिडेंट। तो वॉयलेशन है, वॉयलेशन नहीं, इसे कंफ्यूज मत हो जाना। वायोलेशन, ये इसका मतलब है उल्लंघन करना, नियम कानून तोड़ना, ब्रीच करना। और ये तो चॉइस, आपका विल, आपका विश, आपका डिस्क्रिशन। डिस को नेगेटिव मत मानना, पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। डिस्क्रिशनरी पावर, आपकी विलिंगनेस, आपका प्रेफरेंस। क्वालिटी में पढ़ा होगा। बहुत अच्छा से हमारे टीचर्स जब आते थे ना, एक वीटो का मतलब रिजेक्ट भी होता है। हमारे जब हमारे स्कूल में जब हिस्ट्री की टीचर आती थी, इतने अच्छे से ना, अब तो समझाते भी नहीं, तभी तो बहुत सारा चीज हम लोग को अभी तक याद है ना। इतने अच्छे से डायग्राम बना के ना, एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेचर, ऐसे डायग्राम बना के फ्लो चार्ट में, फिर ये होता है, फिर ये होता है। इतने अच्छे से पहले वाले टीचर समझाते थे ना, कि बहुत सारी 10th स्टैंडर्ड वाली चीजें अभी भी याद। आपके टीचर तो कुछ नहीं समझ, बच्चा दिन रात यूट्यूब वीडियो देख देख के समझ रहा है, बच्चा यूट्यूब वीडियो देख देख के समझ रहा है। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे से समझाते थे। कुछ टीचर्स, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ, स्कूल की बात, लेकिन स्कूल में भी अभी भी बहुत सारे टीचर्स है, बहुत सारे टीचर्स है, डेडिकेटेड है। यूट्यूब पे भी मैं देखती हूँ ना, मैं अपने डॉटर्स का देखती हूँ, वो भी यूट्यूब देखती है, तो 9th-10th वाले को पढ़ाने के लिए ना, बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छे से आके पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से 9th-10th वाले। मैं स्कूल की बात कर रही हूँ, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ। अभी वाले ना बहुत सारे टीचर्स को ना पता चल गया है कि ये बच्चा तो ट्यूशन व्यूशन लेगा ही, खास करके मैथ्स वाले सब ट्यूशन व्यूशन तो लेगा ही, स्कूल में उतना ध्यान भी नहीं दे रहे। हमारे स्कूल में 2-2 3-3 कॉपीज भर जाते थे, फिर नया कॉपी आता था। आपके बच्चे का तो एक आध कॉपी भी नहीं भर रहा है। चलो लिख लिया है ना, अपनी स्वेच्छा से कोई काम करना। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, वो फर्जी टीचर नहीं है, बहुत जगह पे अच्छे अच्छे टीचर्स है, मतलब होता है, मैं सबकी नहीं बात कर रही हूँ। आपके क्लास में ना मैथ्स के टीचर जबरदस्त है, तो हिस्ट्री के टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब है, थोड़ा सा हो गया है। हम लोग का एजुकेशन ना बहुत सही था, जबरदस्त वाला। टीचर को सल्यूट करूंगी ना, मेरे को कितना सारा चीज हिस्ट्री ज्योग्राफी याद है, तो मैं और मैंने दोबारा पढ़ा ही नहीं है, याद है, तो टीचर ही याद आएंगे ना कि इतना अच्छे से पढ़ाया कि अभी भी याद है। तो वॉल्यूशन का मतलब है अपनी वॉलेंटरी स्वेच्छा से, और ये तो मजबूरी में, कंपल्शन। हाँ, मेरा बोर्ड ICSE था। कंपल्शन, कंपेल करना, किसी को मजबूर करना अपनी स्वेच्छा से नहीं। और ये याद रखना ना, ये वर्ड है आपने, फोर्स ऑफ कोएजन, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। फोर्स ऑफ कोएजन, फोर्स करके, मजबूरी में, प्रेशराइज करके। कंस्ट्रेंट का मतलब है बर्डन डाल के, ड्यूरेस का मतलब भी है बर्डन डाल के किया, जबरदस्ती। जो भी बोर्ड था ना, टीचर का डेडिकेशन लेवल, फोर्सफुली। कंस्ट्रेंट का मतलब भी होता है एकदम बर्डन डाल के, बाहर डाल के। हो जाएगा, करगिल टेस्ट हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब तो लगातार प्रैक्टिस ही चलने वाला है, तो इस बैच को थोड़ा ना कोशिश करना है, ये बैच को मार्च के एंड में खत्म कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। उसके बाद हम लोग फ्री रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक दिन क्या, 3-3 दिन आपका प्रैक्टिस होगा, 3-3 दिन प्रैक्टिस है। कंपेल करना, मजबूर करना, प्रेशराइज करना, ये कहीं पे सुना है, मनूवर, तिकड़म, टैक्टिक्स।
जैसे है ना, किसी को आपको अरेस्ट वगैरह करना है तो कोई जाल बिछाया जा रहा है, कोई ट्रिक, इसकी हिंदी देखना तो जरा, आपके पेपर में ये आया था सिसोदिया को अरेस्ट करने के लिए। स्केपगोट नहीं होता, स्केपगोट तो बलि का बकरा बनाना। युद्धाभ्यास, षड्यंत्र रचा जा रहा है, लिख लो षड्यंत्र। युद्धा मतलब हाँ, किसी को जाल में फंसाने के लिए ना मनूवर किया जा रहा है। प्लेन का भी मनूवरिंग होता है, तिकड़मबाजी, फाइटर प्लेन भी करता है, शिप का भी मनूवरिंग होता है, तिकड़मबाजी लिख लीजिए, षड्यंत्र। मेरे को ऐसा लग रहा है ना, षड्यंत्र ना मैंने ऐसा वाला शो होता है शायद, ऐसा वाला नहीं होता, ऐसा वाला शायद, चाल चलना। सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। पैंतरेबाजी, तिकड़मबाजी, रणनीति चलना, ट्रिक, मनूवर, पैंतरेबाजी, हाँ, षड्यंत्रकारी, वही है, लिखते जहां षड्यंत्र ऐसा वाला होता है, सही लिखा, ऐसा वाला होता है, ऐसा वाला। तो मेरे को ना हिंदी में अंडर एस्टिमेट मत करना कि मैम के सामने ना इनकी हिंदी तो उतनी अच्छी नहीं है, कुछ भी लिख देंगे ऐसा वाला, करेक्ट है। ये भी हिंदी टीचर ने कभी लिखना सिखाया होगा, स्पेलिंग पे ध्यान दिया होगा। तो लिखिए, ट्रिक, ट्रिक अपनाना, टैक्टिक्स, मैनिपुलेशन, कुछ लोग बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, ठीक है। मैनिपुलेटिव किसको बोलते हैं? मैं मैनिपुलेटिव गेम ना अपने बच्चों के साथ, अपने डॉटर्स के साथ मैनिपुलेटिव गेम बहुत खेलती हूँ। मैनिपुलेट करना मतलब उसकी बात भी सुन लेना, ओके। गुमराह पूरी तरह से नहीं होता है, गुमराह मतलब वो चालाकी से, मैनिपुलेटिव होना ना बहुत गलत बात नहीं है, ओके। अगर आपको कुछ उन लोगों से, सामने वाले से कुछ आपको बात निकलवानी है ना, तो बात मनवाना, निकलवाना है, तो आपको मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट कर लेते हैं ना कि सामने वाला आगे ये बोलेगा और आप अपनी तैयारी उसके अनुसार करते हो, बातों में फंसाना। मैनिपुलेट कर लेते हो कि मैं ऐसा पूछूंगा ना तो वो ये बोलेगा, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लेना, उसके दिमाग से खेलना, मैनिपुलेट करना। प्लॉट तैयार करना, प्लॉट मतलब प्लान तैयार करना, कॉन्स्पिरेसी, ओके, जाल में फंसाना। प्लॉट और प्लॉय, प्लॉय बचाना मतलब कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, षड्यंत्र रचना। ब्रेन वॉश अलग होता है। ऑपरेशन का मतलब वो डॉक्टर वाला मत समझ लेना। ऑपरेशन होता है ना कारगिल वाला, कारगिल क्या क्या था अभी, कौन सा ऑपरेशन था अभी, मिशन वाला है, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन विजय, वो वाला ऑपरेशन है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ब्लू स्टार में ना निकाला था गोल्डन टेम्पल से आतंकवादियों को, ब्लू स्टार। टर्की ऑपरेशन, ऑपरेशन गंगा, वही वाला है ऑपरेशन। और स्ट्रैटेजम, स्ट्रैटेजी बनाना, कोई स्ट्रैटेजी में भी ना वो तिकड़मबाजी वाली स्ट्रैटेजी बना के सामने वाले को हराना, चाल, इसको बोलते हैं मनूवर, मतलब चाल चलना, ट्रिक्स। गिमिक्स, गेम में भी तो हम लोग गिमिक्स करते हैं, गिमिक्स का मतलब भी होता है तिकड़म, ट्रिक्स, गिमिक्स, ट्रिक्स, मनूवरिंग। और ये तो तिकड़मबाजी, कुछ चाल चल रहे हैं। और ये तो सेसेशन, सेसेशन का मतलब होता है कोई भी चीज स्टॉप कर देना, रोक देना, इन एक्शन में होना, कोई चाल या तिकड़मबाजी नहीं चलना, इन एक्टिविटी में। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, आपको कुछ पता भी नहीं। और इसका एक मतलब ये भी जाता है, कोई चाल चल रहा है और ये खुल के सामने आके लड़ाई करना, ओपन, फ्रैंक। इंडियन क्रिकेट टीम, अच्छा, तिकड़म में फंस गई है। तिकड़म का एक मतलब ये भी होता है कि कोई चाल नहीं चलना, एकदम ओपन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंकनेस के सेंस में भी जाता है, और एक कोई चाल वगैरह चला जा रहा है और ये तो सब सुस्त बैठे हो, दोनों सेंस में जाते हैं। इस मंथ में टारगेट है ना, इसको खत्म कर लेना। इस मंथ में ना आपका होली तो मंडे को है ना, तो आपका होली वाला क्लास, मंडे नहीं सॉरी, होली वेंसडे को है ना, तो होली वाला क्लास तो आपका नहीं हो पाएगा, होली वाला क्लास नहीं हो पाएगा, लेकिन बाकी सब दिन तो हमारा हो जाएगा। टारगेट यही है, मार्च में खत्म करके अप्रैल के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से वो कैप का प्रैक्टिस बैच शुरू हो। एक साइड ग्रामर प्रैक्टिस चल रहा है, वो कैप एक जगह प्रैक्टिस चलेगा और एक जगह फाउंडेशन चलते रहेगा। अच्छा, काइंडली गिव हॉलीडेज। 7th को क्या छुट्टी चाहिए? 7th को सुबह में तो कुछ होता नहीं है ना, 7th को तो सुबह में कुछ होता ही नहीं है होली में, वो जो भी होता है शाम को होता है। 8th को होली है
और 9th को सुबह में मैं छुट्टी रखूंगी और आफ्टरनून वाला ले लूंगी। देख लिया जाएगा, उस समय का मूड है, उस समय का मूड है, देख लेंगे हम लोग क्या करना है, क्या मूड में आ रहे हैं बच्चे। कोई बात नहीं है, होली में हाँ मैंने अपने ऑफिस तो 2 दिन छुट्टी रखा है, लेकिन मेरे को क्लास तो घर से लेना है। 8-9 को ऑफिस छुट्टी रख, छुट्टी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे ना जो पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, मैम होली में छुट्टी मत दीजिएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। होली के दिन उनको सारा लॉस दिखता है, पूरे साल नहीं पढ़ेंगे, होली के दिन का लॉस को बहुत चिंता रहती है। ऐसे भी होते हैं, न्यू ईयर के दिन, दीपावली के दिन क्लास मांगेंगे। सारा पढ़ना तो उनको होली के दिन ही रहा। ये भी बहुत बार आया है। जेटिसन, जेटिसन का मतलब होता है ना थ्रो अवे, त्याग देना, छुटकारा पाना। छुटकारा पाना, त्याग देना, हटा देना, थ्रो अवे करना। ये जेट एयरवेज ने, ये हमने जेट बहुत सारे एम्प्लॉइज को निकाल दिया था, खाली करवा दिया था। जेटिसन, जेट एयरवेज से याद किया था हमने। मम्मी की हेल्प करता हूँ ना, तो ठीक है, मम्मी की हेल्प ना होली के दिन करना होता है। होली में इतना कोई सफाई नहीं शुरू हो जाता है, मम्मी की हेल्प करता हूँ खाने में। जेट एयरवेज, जेट एयरवेज लॉस में जा रहा था ना। जेट एयरवेज बहुत सारे अपने बहुत सारे अपने एम्प्लॉइज को, बहुत सारे अपने एम्प्लॉइज को थ्रो अवे कर दिया, निकाल दिया, निकाल दिया। त्याग दिया। और ये जो सन लोग होते हैं ना, जो बिना काम वाले होते हैं, सन जो काम वाम नहीं करते हैं घर में, उसको घर से बाहर फेंको, सन को निकाल दो। जेटिसन, सन को बेदखल कर दिया, निकाल दिया, निकाल दिया। जेठालाल ने अपने सन को निकाल लिया, जेठालाल ने अपने सन को घर से बाहर फेंक दिया। जेट एयरवेज ने बहुत सारे एम्प्लॉइज को निकाल दिया। आपका सीएचएसएल का, जिन बच्चों को सीएचएसएल देना है ना, उसका मॉक शुरू होगा परसों से, ठीक है? वही रात को 8 बजे यूसी लाइव ऐप पे देते रहिएगा टेस्ट। इजेक्ट, इजेक्ट का मतलब भी होता है ना बाहर, जैसे जैसे पहले वो तो आता है ना, लैपटॉप में भी होता है इजेक्ट। सीडीज वगैरह आप इजेक्ट करते थे ना, बाहर करना, रिजेक्ट कर दिया, बाहर कर दिया, थ्रो कर दिया। थ्रो अवे, डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब भी होता है थ्रो अवे, अबैंडन, उसको बैन कर दिया गया, त्याग दिया गया। शेड, जैसे पेड़ अपने पत्तों को शेड करते हैं, जैसे अभी वसंत ऋतु चल रहा है ना, पेड़ दे आर शेडिंग देयर लीव्स, लीव से छुटकारा पा रहे हैं, टॉस आउट कर रहे हैं। इजेक्टर प्लेन्स भी होते हैं ना। हाँ, टेस्ट फ्री में है। अरे मैंने अभी आपको टेस्ट नहीं करवाया उसका, सीजीएल का, सीजीएल का खत्म हो गया, अब इसका है, अब सीएचएसएल का है। लेकिन सीएचएसएल के बारे में अच्छी बात क्या है ना, सीएचएल में इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है और जीएस भी है, फुल लेंथ टेस्ट परसों से शुरू है, परसों से 8 बजे। ये तो मैंने आपको क्लोज उसमें करवाया है, फिक्स प्रेपोजिशन में। डिस्पेंस विथ, डिस्पेंस विथ का मतलब भी है छुटकारा पाना, निकाल देना, डिस्पेंस विथ, छुटकारा, जैसे बोलते हैं ना रिड ऑफ, रिड ऑफ, वॉर्ड ऑफ, ये तो फिक्स प्रेपोजिशन में किया। कितना है आपका सीएचएसएल का, सीएचएसएल का जो प्री का टाइम है कितना है? 1 आवर ही दिया है ना, 1 आवर ही है ना सीएचएसएल, सीएचएसएल प्री, एक बार बताना। हाँ 1 आवर है, 1 आवर 60 मिनट्स है। हाँ प्री का है, प्री का। डिस्पेंस के साथ ना ये भर भर के एग्जाम में आता है, डिस्पेंस के साथ विथ प्रेपोजिशन लगाना। ये डिस्पेंस विथ सर्विसेज, अपनी सेवाओं से मुक्त हो गए। तो आपने 12:45 पे फोन किया था मेरे पास को, तो कुछ नहीं बताया है। डिस्पेंस, टॉस आउट करना, ठीक है, छुटकारा पा लेना। इसका एंटोनिम्स कर लेते हैं। देखो हमारे 112 वर्ड है यहाँ पे, 12-13 वर्ड है, और समुद्र मंथन 2 वाले शीट में कुछ और भी वर्ड्स है। हो जाएगा, हो जाएगा, मार्च तक हो जाना चाहिए। और ये तो किसी चीज को फेंक देना और ये चीज को कीप रहने देना, मेंटेन करना, जाने नहीं देना, अलाउ करना, बचा के रख लेना, रिटेन करना, रिटेन। कोई भी बच्चा ना अब ईडीएम्स उडीएम्स का बैच नहीं करेगा, ईडीएम्स 1 वर्ड, इसका ई बुक खरीदेगा। और मैं मार्च के बाद ना ई बुक को फिर से रिवाइज करूंगी, खरीद लेगा, रिवाइज करूंगी, मतलब उसमें और भी बहुत डालूंगी, और जो नया आएगा ना तो अपडेट करूंगी। हाँ, तो जो नया आएगा उसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास एक बार आपने परचेज कर लिया है
3 साल तक जितना भी नया आएगा मिलते जाएगा, परचेज नहीं करना। मेरे को नया नया मिला है, रिटेन कर लेना, रहने देना। चलो यहीं तक रहने दो, थक गए हैं बच्चे। ये तो शायद ना, इसमें से कितना वर्ड मैंने करवा भी दिया आपको बीच बीच का, आपको याद होगा मैंने आपको एडवर्सिटी और एडवर्सरी एक साथ करवाया था। एडवर्सिटी का मतलब है आपदा, विपरीत परिस्थितियां, और एडवर्सरी इज आपके कॉम्पिटिटर। ठीक है, ये कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। ये तो शायद करवा भी दिया है आपको रिवीजन, बहुत सारे वर्ड्स ना बीच बीच के हो भी गए हैं, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अमास भी करवा दिया है। वेबसाइट से अगर खरीदा था ना आपने, तो आप एक बार उनको स्क्रीनशॉट वगैरह भेज देना। ठीक है, वेबसाइट से जिसने शुरू में खरीदा था स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन। मीन्स वाले का भी होगा ना 11:30 बजे, दुख दर्द बांटा जाएगा बच्चों। एग्जाम में डरना मत, ड्यूटी है बताना। एग्जाम में ही डर लगता है, खतरनाक खतरनाक लाइफ में काम करते हैं उससे डर नहीं लगता है। टीचर को सिखाना होता है डरना मत, एग्जाम में अच्छे से एग्जाम देना। ठीक है, और बाकी वहां पे खतरनाक खतरनाक गेम करना। चलो थैंक यू एवरीवन।